मॉर्निंग एवरीवन। आज हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी में फर्स्ट हम बात करेंगे उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर होने चाहिए। उसके लिए पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम रैंडम वेरिएबल और उसके अंदर प्रोबेबिलिटी का कहाँ यूज होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी का इन्वेंशन, वो थॉट आया कहाँ से, उसकी बात करते हैं। The scientific approach to probability was initiated by French mathematician. French mathematician कौन था? Pascal and Fermat is in the 17th century. 17th century में probability का थोड़ा सा ख्याल आया। The study of probability began initial with the chess-dependent games of the gambling. Later on it developed to its fully mathematical form and is now applied in large number of fields. मतलब ગેમ્બલિંગ मतलब કે જે પેલા તાસ રમે ને પત્તા, એની પરથી થોડો થોડો એનો ખ્યાલ આવવાનો ચાલુ થયો। પ્રોબેબિલિટીને ગુજરાતીમાં સંભાવના કહેવામાં આવે છે, બરાબર। હવે સંભાવના શક્યતામાં શું કે તમે કોઈન છે, સિક્કો, એને તમે ઉછાળો છો તો તમારી સંભાવના શું આવે? કાં તો હેડ આવે, કાં તો ટેલ આવે, એટલે કાં તો છાપ આવે, કાં તો કાંટો આવે છે, રાઈટ। તો એની સંભાવના થઈ। એવી જ રીતના તમારી પાસે પારો છે, જે આપણે સાપસીડીમાં રમીએ તે ડાઈ, એને ઇંગ્લિશમાં ડાઈ કહેવાય। એને તમે આમ ફેંકો છો જમીન ઉપર તો તેની સંભાવના કેટલી થાય? 1, 2, 3, 4, 5 and 6। કાં તો 1 આવશે, કાં તો 2 આવશે, 3 આવશે, 4 આવશે। આ તો સંભાવના થઈ, તો એને પ્રોબેબિલિટી કહેવામાં આવે છે। ચલો એના થોડા કોન્સેપ્ટ છે એ શીખી લઈએ। ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ ટ્રાયલ। ટ્રાયલ is an action which result in one or more survival outcomes। मतलब કે ટ્રાયલમાં શું થાય? તમે ડાઈને ફેંકી તો એ તમારો ટ્રાયલ થયો, એ એક્શન તમે કરી, રાઈટ। એ રીતના કોઈન તમે ઉછાળ્યો તો જે ઉછાળવાની જે એક્શન થઈ એનાથી જે રિઝલ્ટ આવે છે, બરાબર, એને શું કહેવામાં આવે છે? ટ્રાયલ કહેવામાં આવે છે। હવે આઉટકમ્સ મતલબ શું કે જે તમે એક્શન કરી અને જે નીકળ્યા હેડ અથવા ટેલ, રાઈટ, હેડ અથવા ટેલ। તો આ જે તમે કોઈન ઉછાળ્યો એ એક્શન થઈ, એમાં જે હેડ અને ટેલ આવે છે તો એને શું કહેવામાં આવે છે? આઉટકમ્સ કહેવામાં આવે છે। હવે વાત કરીએ ઇવેન્ટની। એન ઇવેન્ટ ફોર એન એક્સપેરિમેન્ટ ઇઝ ધ કલેક્શન ઓફ સમ આઉટકમ્સ ઓફ ધ એક્સપેરિમેન્ટ। મતલબ કે જે ઇવેન્ટ કરી, રાઈટ, તો એના આઉટકમ્સનું કલેક્શન થયું, એને ઇવેન્ટ કહેવામાં આવે છે। ઇવેન્ટ આર યુઝ્યુઅલી ડિનોટેડ બાય કેપિટલ લેટર્સ A, B, C, D up to Z एक्सेट्रा, राइट। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ, मैंने आपको बोला है कि आपको बोला गया कि एक इवेंट है कि आपको डाई को जमीन पर फेंकना है, तो वो इवेंट हुई, तो उसकी आउटकम्स कौन कौन से हुए? 1, 2, 3, 4 and 5 and 6। तो ये आउटकम्स हुए, उसका कलेक्शन हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं? इवेंट कहते हैं। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट डिनोटेट करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। चलो अब हम बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब कि फॉर इवेंट्स ए एंड बी, आपके पास दो इवेंट दी गई है ए एंड बी, इफ देयर इज अ नो कॉमन ट्रायल बिटवीन देम, मतलब कि इन दोनों में कोई भी कॉमन ट्रायल होना चाहिए नहीं, कोई भी कॉमन आउटकम्स होना चाहिए नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट्स। A group of event is called executive events if all the events together consume all the possible trial। मतलब कि number of outcomes। For the example of, हमने बोला कि सिक्का कॉइन को उछालते हो तो हेड एंड टेल, दो आउटकम्स आते हैं, राइट। तो ये क्या हुए? एग्जीक्यूटिव इवेंट्स हुआ। ऐसे आप डाई को थ्रो करते हो तो आपके पास 6 आउटकम्स आते हैं, राइट। तो ये क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव इवेंट्स हुआ। चलो अब हम बात करते हैं इनप्रिकेबल प्रोबेबिलिटी। इनक्रिपेबल प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एज वी ऑब्जर्व देम। मतलब कि जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसकी बात करते हैं। द प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटेड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ an experiment is called experimental and incremental
प्रोबेबिलिटी, मतलब कि जो हम ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट हुआ जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसे हम बोलते हैं इनप्लीकेबल प्रोबेबिलिटी। चलो अब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी मतलब क्या। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, मतलब કે જે સંભાવના છે કોઈ પણ ઇવેન્ટ હોય, is given by the ratio of the number of trials in a which that event occur to the total number of trials। मतलब आपको क्या बोला गया, टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायल માંથી તમને કઈ ઇવેન્ટ કીધી છે, રાઈટ, એને રેશિયોને આપણે શું કહેવાય છે, પ્રોબેબિલિટી કહીએ છીએ। ફોર ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ, હવે આપણે તમે ડાયને થ્રો કર્યો, એમાંથી ફોર આવવાની સંભાવના કેટલી, એક જ ને, રાઈટ। તો એને આપણે કયા રેશિયોમાં, 1/6। 6 એટલે ટોટલ જે આપણે ટ્રાયલ્સ અથવા આઉટકમ્સ હોય તે, અને 1 એટલે જે તમને કન્ડિશન આપે કે 4 આવવાની સંભાવના કેટલી, 1 આવવાની પ્રોબેબિલિટી કેટલી, તો 1, રાઈટ। તો 1/6 આને આપણે રેશિયોના ફોર્મમાં લખીએ છીએ, રાઈટ। તો આને આપણે શું કહીએ છીએ, પ્રોબેબિલિટી કહીએ છીએ। હવે તો આનો ફોર્મ્યુલા શું થશે, તો ફોર્મ્યુલા શું થશે, નંબર ઓફ ટ્રાયલ ઇન વિચ ઇવેન્ટ એ ઓકર્ડ, मतलब कि जो इवेंट થઈ તેના નંબર ઓફ ટ્રાયલ, એક જ વખતે આપણે ટ્રાયલ કર્યો એમાં 4 આવવાની સંભાવના કેટલી, 1 થઈ, अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, अपॉन द टोटल नंबर, કેટલા ટોટલ ટ્રાયલ, मतलब નંબર ઓફ ટોટલ આઉટકમ્સ કેટલા થયા, 6 હતા, રાઈટ। તો એ શું થશે, ધ ટોટલ નંબર ઓફ ટ્રાયલ્સ। હવે આને ડિનોટ કેવી રીતે થશે, પ્રોબેબિલિટી ઓફ occurrence of an event A is denoted by P of A। उसको हम P of A से डिनोट करते हैं। चलो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी कि प्रोबेबिलिटी ની प्रॉपर्टीज કઈ કઈ છે। ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધ પ્રોબેબિલિટી ઓફ એની ઇવેન્ટ લાઇઝ બિટવીન 0 એન્ડ 1, मतलब कि જેટલી પણ આપણે ઇવેન્ટ કરી તે 0 અને જે આન્સર આવે ને પ્રોબેબિલિટીના એ 0 અને 1 ની વચ્ચે જ આવે હંમેશા, याद રાખવાનું। જ્યારે તમે ડિવિઝન કરો કાં તો તમે ગમે તે કરો તો એ 0 અને 1 ની વચ્ચે જ આવશે, इंक्लूडिंग बोथ। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, 0 लेस और इक्वल टू P of A लेस और इक्वल टू 1। चलो सेकेंड वन इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जीक्यूटिव इवेंट्स इज 1, मतलब कि जितने भी, अब यहाँ पे एग्जाम्पल एक देती हूं मैं कि आपको कॉइन्स का थ्रो, उसको आपने उछाला, राइट, तो उसके टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2 हुए। तो इसको हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। अगर इन दोनों का आपको सम मतलब एडिशन करो 1/2 प्लस 1/2 तो क्या आएगा, देखो डिनोमीटर सेम है, मतलब कि 2 आएगा, एलसीएम 1 + 1 तो 2/2, 1 आ गए, हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। ऐसा ही नॉट ओनली इन कॉइन्स और डाइज में या कोई भी आपको इवेंट्स दी गई होगी उसका अगर आप एडिशन करोगे, राइट, तो हमेशा इवेंट का लास्ट में आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब अगर आप एडिशन किया जाए तो वो भी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जब हम देखेंगे उसमें हम उसका भी एक प्रूफ करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, मतलब कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि हेड एंड टेल है, लेकिन हेड टेल एक साथ आ सकता है, ऐसा एक साथ आ सकता है, नहीं आ सकता, राइट। एक साथ हम उसको, एक कॉइन है आपके पास तो हेड एंड टेल दोनों एक साथ नहीं आ सकता, मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट भी, तो उसका हम प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकते, उसे इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज 1, मतलब कि एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 ही होगा। चलो अब हम उसके रिलेटेड एक एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन पढ़ती हूँ, 3 कॉइन्स आर टॉस सिमिल्टेनियस, एक मतलब कि एक साथ तीनों के तीनों कॉइन आपको उछालना है, कितनी टाइम्स उछालना है, 500 टाइम्स, राइट, विथ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिफरेंट आउटकम्स, मतलब आपको यहाँ पे डिफरेंट आउटकम्स का एक टेबल दिया गया है। नंबर ऑफ हेड, मतलब कि तीनों के तीनों मैंने कॉइन्स एक साथ उछाले, आप 3 स्टूडेंट्स देख लो और आपको 500 टाइम्स उसको उछालना है एक साथ, राइट। तो तीनों के तीनों में 0 हेड आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 70 टाइम्स तीनों के तीनों कॉइन्स में 0 हेड, मतलब एक भी हेड आया नहीं, कितने, 70 टाइम्स। 190 टाइम्स क्या आया, 1 हेड आया, राइट।
मतलब कि तीनों मैंने कॉइन उछाले तो तीनों में से, ऐसे मैंने तीनों कॉइन उछाले, उसमें तीनों में से किसी एक में हेड आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है 190। फिर दो कॉइन में हेड आने की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 175 और तीनों के तीनों हेड होने की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 65 थी। और ये सभी एडिशन करके 500 टाइम्स में से 70 जीरो हेड, 190 1 हेड, 175 2 हेड, 65 3 हेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग 0 1 2 और 3 हेड्स। और आपको क्या वेरीफाई करना, अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी वो, कि वेरीफाई दैट द सम ऑफ ऑल दोज प्रोबेबिलिटी इज 1। वो आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। चलो अब सॉल्यूशन देखते हैं कि सिंस द कॉइन्स आर टॉस्ड, कितनी टाइम्स टॉस किया था 500 टाइम्स, तो टोटल आउटकम्स मतलब टोटल आउटकम्स कितना हुआ, देयरफॉर टोटल आउटकम इज 500, राइट। चलो लेट अस, अब हम इन सभी की क्या फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। लेट अस, तो इसको मैं पहले डिनोट कर लेती हूँ, राइट, कि जस्ट लाइक ये A1 है इवेंट, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। इवेंट कौन सी, कि 0 आने की इवेंट, 1 हेड आने की इवेंट, 2 हेड आने की इवेंट एंड 3 हेड आने की इवेंट। डिनोट द इवेंट्स of getting 0 head, 1 head, 2 head and 3 head by A1, A2, A3, A4 respectively। तो चलो पहले A1 की बात करते हैं। P ऑफ A1 फॉर्मूला क्या होगा हमारा, यही कि नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट A1 ऑकर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो चलो पहले में क्या होगा, A1 इवेंट में कितना 0 हेड है, 0 में कितने फ्रीक्वेंसी है 70 और टोटल कितने आउटकम्स थे 500, राइट। तो अगर इसको कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.14। चलो ऐसे P ऑफ A2 क्या होगा, टोटल A1 हेड आने की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 190, टोटल आउटकम्स कितने थे 500, राइट। तो आंसर आएगा 0.38। चलो P ऑफ A3 की बात करते हैं, तो टोटल कितने आउटकम्स थे 500 और उसमें A3 में 2 टाइम्स हेड आने की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 175। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.35। एंड P ऑफ A4, राइट, तो इसमें टोटल आउटकम्स थे 500, राइट, उसमें 3 टाइम्स हेड आने की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 65, तो उसका आंसर आएगा 0.30, राइट। ये हमने क्या फाइंड किया, प्रोबेबिलिटी फाइंड की अलग अलग इवेंट्स पर। चलो अब हमें क्या बोला गया था कि वेरीफाई द सम ऑफ ऑल दोज प्रोबेबिलिटी इज 1। सम ऑफ मतलब कि ये प्रोबेबिलिटी A1 की, A2 की, A3, A4 की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, वो हम फाइंड करेंगे। हियर P ऑफ A1 प्लस P ऑफ A2 प्लस P ऑफ A3 प्लस P ऑफ A4 इक्वल टू 0.14 प्लस 0.38 प्लस 0.35 प्लस 0.30 इक्वल टू, अगर आप इसका एडिशन करो तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो ये यहाँ पे आपको प्रूफ भी हो जाता है कि क्या प्रूफ होता है कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑल म्यूचुअली एग्जीक्यूटिव इवेंट इज 1। चलो अब हम बात करते हैं रैंडम वेरिएबल की। रैंडम वेरिएबल, चलो रैंडम वेरिएबल में 2 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। फर्स्ट वन इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल
and second one is a continuous random वेरिएबल, राइट। चलो अब पहले बात करते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या होता है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में अगर वन टाइम मैंने कॉस्ट को उछाला, वन टाइम मैंने कॉइन को उछाला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एच एंड टी, हेड एंड टेल। अगर टू टाइम्स मैंने टू कॉइन्स को लेकर मैंने एक साथ उसको उछाला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो हेड हेड होगा, हेड टेल होगा, टेल हेड होगा एंड टेल टेल होगा। चलो अब इसकी बात करते हैं सेकेंड टाइम के जो इवेंट थी, सेकेंड इवेंट थी, उसकी बात करते हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करें किसकी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं हेड आने की, राइट। तो यहां पे लिखूंगी हेड पी ऑफ ए और यहां पे लिखूंगी प्रोबेबिलिटी जो फाइंड की है वो फ्रीक्वेंसी, यहां पे हेड और यहां पे मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेती हूँ। चलो हेड आने की, तो पहले तो 0 कितने हैं, तो क्या आएगा, यहां पे 0 आ जाएगा। फिर वन टाइम किया तो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2 है, राइट। तो 0/4 2/4, 2 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4, राइट। चलो अब देखो इसको, अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ करती हूं तो यहाँ पे x और यहाँ पे क्या होगा, हाँ P ऑफ ए। तो चलो यहाँ पे 0 1 एंड 2, 0 आने की तो 1 आएगा, मेरी गलती है, 1/4 आएगा, राइट। चलो 0 आने की यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे 2/4, तो 0 इवेंट पर हेड आने की 1/4, राइट। 1 आने की क्या थी, 2/4 और 2 पर 1/4, मतलब यहाँ पे। तो ये क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसा ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सच टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल और एक्स आर नॉन एज अ डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल। अगर यहाँ पे मुझे ये बीच की स्पेस ये मुझे फाइंड करना है, तो ये आपको पता होगा, नहीं होगा। तो ऐसे जो हम ग्राफ होता है, राइट, ऐसे प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मतलब क्या, जब लार्ज नंबर्स होते हैं, अगर एक स्कूल में 400 स्टूडेंट्स हैं और उसका हमें वेट पता होना चाहिए, वेट आपको मेजर करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, किसकी, वेट की, 100 स्टूडेंट्स की, राइट। और कौन कौन से फ्रीक्वेंसी के बीच, 30 से 40 के बीच में, कहां से, 30 से 40 के बीच में आपकी जो स्टूडेंट्स है उसका वेट आपको करना है। तो कोई ना कोई स्टूडेंट्स तो सभी नंबर्स को अगर हम काउंट कर लेंगे, मतलब कि एक स्टूडेंट का 30 है, दूसरे स्टूडेंट्स का 30.1 है, 30.2 है, 35 है, 36 है, तो ऐसे वेरिएबल को, ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। चलो अब डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल में क्या होगा, P ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और उसको समेशन P ऑफ x इक्वल टू 1 होगा, राइट। और उसमें कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या होगा कि उसको हम डिनोट करते हैं f ऑफ x से, राइट। तो उसमें f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx इक्वल टू 1 हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। P ऑफ x मतलब क्या, कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। चलो अब हियर डिस्ट्रीब्यूशन आर कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल में, हियर द आर बायोनोमियल
एंड पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन। और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या होगा, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन आर यूज्ड आर एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल एंड यूनिफॉर्म, यहां पे उसका यूज होता है। थैंक यू।